کہ اللہ نے یہ تمہارے نصیب کے اس ٹائم یہاں قدم نہیں. جب زمین آسمان نہیں بنے تھے تو اس وقت اللہ نے لکھا. آپ اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرو. نہ آپ پیسے کے زور پر آئے ہیں، نہ گروپ لیڈر کے زور پر آئے ہیں، بلکہ زمین آسمان کے. ماشاءاللہ آج 1 نومبر 2024 ہے اور جمعے کا مقدس دن ہے. یہ افرا ٹورز اینڈ ٹریول جس کے پروپریٹر ہیں بھائی یونس مہاراشٹر والے، آج ان کے حجاج کرام اللہ کے گھر میں پہنچ چکے ہیں اور وہ کو دعا کر رہے ہیں اللہ پاک کو جہاں کی خوشیاں نصیب فرمائے اور بار بار آنے کی سعادت نصیب فرمائے. افرا ٹور والے حجاج کرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے اور بار بار آنے کی سعادت نصیب فرمائے. ہمارے حجاج کرام مہاراشٹر والے آج ان کے حجاج کرام اللہ کے پاک مہمان ماشاء اللہ اور ان کو دعا کر رہے ہیں اللہ کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے، بار بار آنے کی سعادت برکت رحمت خوشیاں نصیب فرمائے. یہ ہوٹل طلعت اجاد، اس کا یہ چھوٹا انٹرنس فندق شہدا 5 اسٹار ہوٹل اور ایک کلاک ٹاور، اس کے بیک سائڈ میں حرم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افرا ٹور سینٹر سے رات کا دوپہر کا کھانا. روٹی، اسپنجر پلیٹ، رائس، دال گوشت، بھنڈی، چیزی کا میٹھا، سلاد، چائے، پانی. السلام علیکم. کے بارے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی رحمت اور سارے نبیوں کے اور سارے نبیوں کی ماؤں کے ساتھ اور سارے نبیوں کی زبان مبارک کے ساتھ اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے وقت پہلے لوہے کا جنگلہ ہوتا آسانی سے قبر مبارک نظر آتے تھے. لوگ آ کے سجدہ کرتے، مٹی اٹھا کے لے جاتے، پھر ان لوگوں نے جنگلہ پھاڑ کے پھینک دیا. اب دیوار کو اونچا کر دیا، قبر کو نہیں دیکھنے دیتے. اب لوگ یہاں کھڑے ہو کے دعا کر لیتے ہیں. اور وہ جو ان کی سپیکر والی جگہ دیکھ رہے ہو وہ لائبریری ہے. اندر بڑے بڑے پتھر کے پیس ہیں جن کے اوپر قرآن پاک لکھا ہوا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ وضو بنا کے اندر جا کے 2 رکعت پڑھ کے نہ پا. یہ سامنے کھجور کا درخت دیکھ رہے ہو، اللہ تمہارے اوپر نور کھولے، اس کھجور کے درخت کے ساتھ جمع ہو جانا. جتنے لیڈیز ہیں، جتنے مرد ہیں، ٹھیک ہے بات سمجھ آ رہی ہے. اب جن کا وضو نہیں ہے وہ میرے ساتھ چلے. میں وہ آپ کے بارے میں، یہ نام کے بارے میں بہترین بتا رہا ہوں کہ ہماری جو گاڑی ہوگی اس دروازے کے سامنے اتر کر، ہاں خدا نہ خاصہ کوئی آگے پیچھے ہو جاتا ہے. یہ درخت دیکھ رہے درخت کے نیچے، درخت کے نیچے دروازے کے سامنے میں آپ کو لے جاؤں گا گاڑی کے ساتھ. سمجھ آ گئی نشانی یاد رکھو گے نا. آپ کو جو نشانی بتائی خدا نہ خاصہ لاپرواہی کرے گا آگے پیچھے جب اس کو بتا رہا ہوں. اور 20 منٹ ہوں گے تمہارے پاس، ابھی تو بڑے 7 منٹ ہوتے ہیں. چلے سارے ماشاء
जबल सूर की ज़ियारत मक्का मुकरमा अफरा टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से। इसमें अल्लाह की तरफ से मदद आता है। तो पहाड़ का नाम क्या है? जबल रहमा। जिसके ऊपर सतून बना हुआ है ना, ये किंग अब्दुल अजीज बादशाह ने बनवाया था। पहाड़ का नाम क्या है? और यहाँ बाप आज़म अम्मा हवा की जुम्मे के दिन 10 मुहर्रम को मुलाकात इसी पहाड़। बाप आज़म ने आसमान की तरफ देख कर कहा, ये इमाम हाकिम अल-मगदूर के अंदर बैठ है। ये पहाड़ के दामन में खड़े होकर बाप आज़म ने आसमान की तरफ देख कर कहा, या अल्लाह तुझे मोहम्मद रसूल अल्लाह का वास्ता है। अल्लाह ने कहा मोहम्मद को जबल रहमा मक्का मुकरमा अफरा टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ। जब मुझ में रूह पड़ी तो मेरी आँख पे निगाह पड़ी। मैंने मैं सीधे चलने किया था, अपनी मर्जी भी करी नाम से चाहती हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया, हाँ अगर मैं अपनी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को पैदा न सकता तो मैं तेरे को भी पैदा न सकता। या मैंने आज इसके तो बात नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अफरा टूर्स सेंटर से रात का खाना लगाया गया है 2024 8-9 तारीख। रुमाली रोटी, स्पंजर प्लेट, राइस, कड़ी, सब्जी, चिकन चिली, दही बड़ा, पापड़, चिकन सूप, पानी पूरी, अमरूद, ऑरेंज, चाय, पानी, शरबत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे नबी ने जब इधर से हिजरत फरमाई ना, इधर से तशरीफ लेकर इधर से यानी यमन की तरफ इधर से ये है इब्राहिम की रोटी इधर से पार है। और वो जो ये सामने जो करने में सामने यहाँ बहुत सारी होती है और इधर से बेटा जा रहा है। इसलिए हमारे नबी ने मैं अपने बाप की अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अफरा टूर्स एंड ट्रैवल्स का ताइफ की ज़ियारत। और हर औरत मर्द के अल्लाह हर मुसलमान औरत की रूह के अंदर अपने नबी की मुकद्दस रूह को शामिल फरमाए और अल्लाह हमारे दिल को कुरान किताब बनाए और दोनों जहानों के साथ बरकत हमें और हमारे माँ बाप बहन की हर कदम पर नसीब फरमाए। और ये चार दीवारी देख रहे हो, ये तुर्की वालों की निशानी के तौर पर लगा रखी है। इसी जगह अल्लाह के नबी 1400 साल पहले चल रहे थे और जब आप पे पत्थर बरस रहे थे। ये जो आप दरख्त देख रहे हैं ना, इसके अंदर 12 सहाबा कराम की कब्रें हैं जो फतह मक्का के बाद जंग हुनैन हुई, जंग हुनैन का माले गनीमत तकसीम करके आप इहराम पहन कर अल्लाह के घर की तरफ उम्रे के लिए चले तो कुछ लश्कर को आपने रवाना कर दिया हज़रत तैब के अंदर हज़रत अली की क़यादत। तो 7 दिन हज़रत अली मुसलसल कलमे की दावत देते रहे। 8वें दिन जो यहूदियों ने हमला किया और जंग में सहाबा कराम शहीद हुए उन 12 की उसके अच्छा एक वो जगह होगी एक जगह मस्जिद के अंदर 2 रकात सलातुल हाजत। इस नियत के साथ ये अल्लाह को हम सब थोड़े हैं हमारी मदद फरमा। तो पहले बहुत तेज तूफानी बारिश आई, बारिश आने की वजह से मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो गया। उसके बाद तूफानी आंधी आई, आंधी आने की वजह से कुफार के घोड़ों की रस्सियां टूट गई, ऊंटों की रस्सियां टूट गई और कुफार डर के मारे भाग गए। एक कुफार खंदक रास्ते में कामयाब हुआ था,
تو सैयदना अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला शेर खुदा ने उसे एक ही बार में उसके 2 टुकड़े कर दिए। और ये जंग बगैर किसी जंग के फतह हुई, इसमें मुसलमानों का कोई भी जानी व माली नुकसान नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच चुके हैं ग़ज़वा खंदक के मकाम पे। इंशाअल्लाह आपको सामने पहाड़ भी नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा आगे की तरफ इंशाअल्लाह सामने नजर आ रहा है पहाड़। अब इसे गाड़ी जैसे घूमेगी, अब सबने सीधे हाथ पे गौर करना है। इस पहाड़ का नाम है जबल सिला। क्या नाम है? जबल सिला। इस पहाड़ की बैक साइड पर सारा मदीनातुल मुनव्वरा है। हमारे होटल भी इसकी बैक साइड पर हैं। इसके ऊपर देखेंगे आप छोटे छोटे मोर्चे बने हुए हैं, आगे वालों को नजर आ रहे होंगे, नजर आ रहे हैं ना, छोटे छोटे ऊपर मोर्चे बने। यहाँ पर सहाबा इकराम के खैमे हुआ करते थे। खिलाफत उस्मानी में छोटे छोटे मोर्चे बना दिए गए कि उनकी नाम की निशानियां बाकी रह सके। ये 2 मीनार वाली मस्जिद नजर आ रही है, ये है जामिया खंदक। इसी जगह पर भी 2 खैमे होकर देख रहे हैं आप, सब काम चल रहा है यहाँ पे, आपको भी नजर आ रहा है। ऐसी बात नहीं है, अगर यहाँ पे होता तो इंशाल्लाह पहले गाड़ी वहाँ पे जाती थी। ये पार्किंग ही बना रहे हैं अभी गाड़ी के भी। ये सारा खंदक का मकाम, उसी जगह पर जो मस्जिद है उसी जगह पर 3.5 मील लंबी खंदक खोदी गई थी, जिसका आपको भी नामो निशान बाकी नहीं है। इसी तरह ज़बान बरहाल यहाँ पे हमने हाजिरी दी, आपके सामने काम चल रहा है। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आप सबको इन मुकद्दस मकामात की बार बार हाजिर नसीब फरमाए और इसके साथ साथ अदब एहतराम करने की भी तौफीक अता फरमाए। उसी तरह ज़बान जैसे मैंने आपको बताया था, इसके बाद हमारी गाड़ी कहाँ पे जाएगी? मस्जिद किबलतैन। किबला एक को कहते हैं किबलतैन, यानी 2 किबलों वाली मस्जिद। हमारा मुसलमानों का जो अव्वल किबला रहा है कौन सा? बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अक्सा जो फलस्तीन में है, वहाँ पे जंग भी हो रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बैतुल मुकद्दस की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला फलस्तीन के मुसलमानों की भी हिफाजत फरमाए। खसूसन 2 रकात नमाज नफिल मस्जिद नबी में अदा करके बैतुल मुकद्दस के लिए और फलस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए ता क़यामत फरमाए। बैतुल मुकद्दस हमारा ईमान है, बैतुल मुकद्दस के बगैर हमारा ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता। जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में नमाजें अदा किया करते तो उस वक्त दोनों किबले आमने सामने हुआ करते थे। बैतुल्लाह भी और बैतुल मुकद्दस भी आमने सामने हुआ करते थे और नमाज अदा किया करते थे। लेकिन जब आप मक्का से करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, तब भी 16 से 17 माह बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ाते रहे और दिल ही दिल में ये दुआ मांगा करते कि या अल्लाह मेरा किबला बैतुल्लाह हो, क्योंकि आप सबको बैतुल्लाह से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। जब आप सब मक्का से करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ला रहे थे तो बैतुल्लाह के सामने एक बड़े पत्थर के ऊपर खड़े होकर मुखातिब होकर फरमाते हैं, ऐ बैतुल्लाह तुम्हें छोड़ने का दिल नहीं करता, लेकिन तेरे आसपास के जो लोग हैं वो मुझे चैन से जीने नहीं देते, इसीलिए अल्लाह के हुक्म से जल करके जा रहा हूँ। जब आप सब यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर भी सताने वाले थे, मुनाफिकीन थे। मुनाफिकीन जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ताना दिया करते कि दीन तो नया लाए हैं लेकिन किबला हमारा इस्तेमाल करते हैं। तो उस बात से आप सबको बड़ी तकलीफ होती थी और दिल ही दिल में ये दुआ मांगा करते कि या अल्लाह मेरा किबला बैतुल्लाह हो। और ये दिल ही दिल में जो दुआ मांगने वाला अमल है ना, ये दिल में रहा, कभी भी ये अल्फाज मुबारक अपनी जबान मुबारक पर ना लेकर आए। जिस जगह पर ये मस्जिद है, मस्जिद किबलतैन, यहाँ पर एक कबीला आबाद था बनु सलमा का। वहाँ पर जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबिया रहा करती थी, हजरत बशर रजी अल्लाह ताला अन्हा। वो बीमार हो गई, उनकी अयादत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से यहाँ पर तशरीफ लाए। जब आपसे यहाँ पर पहुंचे तो एक रिवायत मिलती है जोहर की नमाज का टाइम हो गया था, दूसरी मिलती है असर की नमाज का टाइम हो गया था। 4 रकात थी, 5 नमाज थी, एक वक्त को ले लेते हैं कि जोहर की नमाज का टाइम हो गया था। जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात नमाज बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके पढ़ा चुके, 2 रकात नमाज बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके पढ़ा चुके, जब अत्तहियात में बैठे तो फिर दिल में ख्याल आया और बार बार आसमान की तरफ देखने लगे, वही का इंतजार करने लगे। तब वही नाज़िल होती है, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका किबलतन तर्ज़ाहा। ऐ मेरे प्यारे महबूब, आपका बार बार आसमान की तरफ देखना हमको बहुत ज्यादा पसंद आया है। आप अपना चेहरा फवल्ली वजहका शत्रुल मस्जिदिल हराम, आप अपना चेहरा अनवर मस्जिद हरम की तरफ फेर लें, यानी बैतुल्लाह की तरफ फेर लें। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके पढ़ाई और 2 रकात नमाज बैतुल्लाह की तरफ करके पढ़ाई। इसलिए इस मस्जिद को कहते हैं मस्जिद किबलतैन। आपको उल्टे हाथ में मस्जिद नजर आ रही होगी सामने इंशाअल्लाह। वहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी जा रहे हैं मस्जिद किबलतैन में।
यहाँ पर भी इंशाल्लाह आपको उतारेंगे। यहाँ पे आपने पढ़ना है 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद, जैसे मस्जिद कुबा में पढ़े थे। वैसे भी हम लोग जिस मस्जिद में जाएं उस मस्जिद का हक बनता है कि उस मस्जिद के नाम के 2 नफल जरूर अदा किया करें। जैसे मस्जिद नबी में जाते हैं तो 2 नफल मस्जिद नबी के भी जरूर अदा किया करें। यहाँ पर हमने 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद या 2 रकात नमाज नफल मस्जिद क़िबलतैन के नाम के अदा करने हैं और 2 रकात शुक्राने के अदा करने हैं, क्योंकि इसी जगह पर हमारे मुसलमानों का किबला बदला, इसी जगह पर आपसे दिली ख्वाहिश पूरी हुई, दिली मुराद पूरी हुई और इसी जगह पर अल्लाह ताला ने हमें भी आने का मौका दिया। इसलिए 2 रकात शुक्राने के भी पढ़ने, अपने लिए, अपने अहल-ओ-याल के लिए, बैतुल मुक़द्दस के लिए और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उनकी हिफाज़त फरमाए ता क़यामत फरमाए। जेंट्स बात हज़रात थोड़ा सा मतवज्जो हो जाए। जेंट्स जब मस्जिद के अंदर जाएंगे ना तो हर मस्जिद का एक बड़ा दरवाजा होता है। यहाँ जेंट्स के जो वजू खाने हैं वो नीचे है और मस्जिद ऊपर है। लेडीज वाली जगह पर वजू खाने नीचे है और मस्जिद ऊपर है। वजू सबका होगा माशाल्लाह। जब जेंट्स मस्जिद के अंदर जाएंगे तो हर मस्जिद का एक बड़ा दरवाजा होता है। जैसे बड़े दरवाजे से एंटर होंगे, अंदर दाखिल होंगे तो फिर पीछे मुड़कर ऊपर की तरफ देखेंगे, आपको एक मेहराब नुमा निशान बना हुआ नजर आएगा, दीवार के ऊपर मुसल्ला नुमा निशान बना हुआ नजर आएगा। उससे हमें पता चलेगा हमारे मुसलमानों का जो अव्वल किबला है बैतुल मुक़द्दस, उसका रुख किस तरफ है। जैसे हम होटल के हमारे रूम में एक छोटा स्टिकर लगा होता है, वो क्या डायरेक्शन देता है कि किबला किस तरफ है। यहाँ पर भी एक ऐसी जय नमाज सी बनी हुई है, वो हमें ये बताएगा कि हमारा अव्वल जो किबला बैतुल मुक़द्दस जो रहा है उसका रुख किस तरफ हुआ था। वहां से फोटो क्लिक करेंगे, फोटो क्लिक करके अपनी ख़वातीन को भी दिखा सकते हैं कि ख़वातीन जगह पे निशान नहीं है। ख़वातीन भी थोड़ी सी मुतवज्जो हो जाए, यहाँ पे ख़वातीन की नमाज पढ़ने की जगह काफी तंग है, तो इसलिए ख़वातीन जो अपने सामान की हिफाजत करेंगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सामान चोरी हो जाता है, रश होने की वजह से इधर उधर हो जाता है, तो इसलिए सामान कफ़ा बिल्लाहि शहीदा, कफ़ा बिल्लाहि रकीबा, कफ़ा बिल्लाहि हसीबा, कफ़ा बिल्लाहि अलीमा, कफ़ा बिल्लाहि हफीज़ा, कफ़ा बिल्लाहि नसीरा, कफ़ा बिरब्बिका हादियन व नसीरा, रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब, ला इलाहा फत्तख़िज़ू वकीला। अल्लाह ने अपने सारे नबी भेजे, सारे नबियों ने ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ लगाई, उनकी ज़बान पे ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ के सदक़े सारी दुनिया के मुसलमानों को मौत के वक्त कलमा नसीब कर। जो ज़मीन के नीचे चले गए हैं सबकी बख्शे कर, और जो ज़मीन के ऊपर हैं उनकी भी बख्शे कर, और जो आला मरवाहत में हैं उनकी भी बख्शे कर। सब की दुनिया अच्छी बना दे, आखिरत अच्छी बना दे, और सारी दुनिया में जुल्म हटा दे, और हर घर में नूर मोहम्मद को रोशन फरमा दे। ये कोई ये जब क़यामत के दिन आओगे ना, योम ऐज़ी तो हदीस अखबार